देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुसवन्न सुफूफकुम औ लयख्लिफन्नल्लाहु बैन वजूहिकुम। मुस्लिम शरीफ। नमाज में अपने सफ़ों को सीधी करो वरना अल्लाह ताला तुम्हारे क़ुलूब में इख्तिलाफ डाल देगा। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम हेडलाइंस पर। रियासती हुकूमत तालीमी निज़ाम को मयारी बनाने के लिए कोशा, रियासती वजीर के तारक रामाराव का बयान। बेरोजगार नौजवान इदारे सेटविन की खिदमात से इस्तेफादा हासिल करें, रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का बयान। और वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, असातिज़ा तलबा को मयारी तालीम फराहम करते हुए इम्तिहानात के लिए करें तैयार। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। राजना सिलसिला ज़िले मुस्तखर पर ज़िले परिषद स्कूल की जदीद इमारत का रियासती वजीर बराए बल्दी नज़्म। ముఖ్యంగా ఈ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకి విద్యార్థులకి హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. చాలామంది మిత్రులు వక్తలు నా ముందు మాట్లాడిన వాళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ జరిగిన కార్యక్రమం గురించి సవివరంగా చెప్పడం జరిగింది. 1960వ సంవత్సరంలో ఈ పాఠశాల నెలకొల్పబడి ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు వేలాది మందికి విద్యాబుద్ధులను అందించి ఎంతోమందిని సమాజానికి ఉపయోగపడే, ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే ప్రయోజకులుగా తయారు చేసింది ఈ జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ గీతానగర్. అట్లాంటి ఈ పాఠశాల దాదాపు సంవత్సరంన్నర కిందట నేను ఆనాడు ఏదో ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చినప్పుడు, ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఉపాధ్యాయ మిత్రులు కూడా చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితి, మౌలిక వసతుల లేకపోవడం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఏదో సందర్భంలో బాగా చేయాలనే ఒక ఆలోచన ఉండింది. అనుకోకుండా ఈ కరోనా మహమ్మారి రావడం, మొత్తం అన్ని విద్యా సంస్థలు మూతపడడం, దాంతో పెద్దలు చెప్తారు ఎప్పుడు, ఎవ్రీ అడ్వర్సిటీ ఆల్సో ప్రజెంట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అంటే ఒక ఇంతకుముందు చెడులో మంచి వెతుక్కోమని చెప్పారు, అదే పద్ధతిలో ప్రపంచం మొత్తం ఈ మహమ్మారి వల్ల బాధపడుతున్నప్పటికీ దీనిలోంచి కూడా ఏదైనా మంచి తీసుకోవచ్చు అన్న ఆలోచనతో మనం పూర్తి స్థాయిలో దీన్ని పునర్నిర్మాణం చేస్తే ఎట్లా ఉంటుందని చెప్పి మా తమ్ముడు సంకేత్ కొండూరి గివ్ తెలంగాణ సంబంధించి వారితో కలిసి దీనికి రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. చేసిన తర్వాత దాదాపు ఒక 3.5-4 కోట్ల రూపాయలు అవసరం పడతాయి. మరి ప్రభుత్వ నిధులతో ఇదే పని చేస్తే, ప్రభుత్వ నిధులు అన్నప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే మళ్ళీ కాంట్రాక్టు, ఆ తర్వాత దానిలో అన్ని రకాల టైం లేట్ కావడం, ఇంకా రకరకాల కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. అట్లా కాకుండా చాలా సంస్థలు ఇవాళ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో భాగంగా విద్యకు ముఖ్యంగా డబ్బులు కేటాయించడానికి ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు. మరి మీరు అడిగితే తప్పకుండా సహాయం చేస్తారు అని చెప్పి సంకేత్ గారు, అదే రకంగా కలెక్టర్ గారు కృష్ణభాస్కర్ గారు చెప్పడం, దాంతో నేను మన దివి ల్యాబ్స్ సంబంధించిన కిరణ్ దివి గారితో మాట్లాడి వారు వెంటనే ఒప్పుకోవడం, మరి ఈరోజు సుబ్బారావు గారు కూడా వచ్చారు, వారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. దివి ల్యాబ్స్ నుంచి వారు ఈ డబ్బులు మనకు కేటాయించడంతో ఈరోజు ఈ పాఠశాలను అపురూపంగా దాదాపు 40 గదులు, అందులో 20 తరగతి గదులు, స్టాఫ్ రూము, ప్రిన్సిపల్ రూమ్, నాకు అన్నిటికన్నా బాగా నచ్చింది డైనింగ్ హాల్. ఒకటేసారి 400 మంది కూర్చొని తినే విధంగా బ్రహ్మాండమైన డైనింగ్ హాల్ పిల్లల కోసం కట్టుకున్నాం. దాంతోపాటు 32 డెస్క్టాప్లు పెట్టుకొని, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ పెట్టుకొని పిల్లలకు ఒక అధునాతనమైన కంప్యూటర్ ల్యాబ్, ఒక సైన్స్ ల్యాబ్, ఒక ఇన్నోవేషన్ ల్యాబ్, అదే రకంగా పిల్లలకి ఏమైనా ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చినా ఒక చిన్న క్లినిక్, ఫస్ట్ ఎయిడ్తో సహా చిన్న కార్యక్రమాలకి ఒక చిన్న క్లినిక్, అదేవిధంగా 12 సీసీ కెమెరాలు, ఒక అద్భుతమైన టర్ఫ్తో కూడిన ఫుట్బాలు, ఇంకా ఇతరత్ర క్రీడలు ఆడుకోవడానికి చక్కటి గ్రౌండు, ఇవన్నీ కూడా చేసుకొని ఈరోజు
ఇంత చక్కటి వాతావరణంలో పాఠశాల తిరిగి పునఃప్రారంభం కావడం అనేది నిజంగా ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఒక మంత్రిగా ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఏమేమో పనులు చేస్తూ ఉంటాం, డబ్బులు వస్తాయి, మంజూరు చేస్తూ ఉంటాం, పనులు చేస్తూ ఉంటాం. కానీ మనసుకు సంతృప్తినిచ్చే పనులు చాలా కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి. అందులో ఖచ్చితంగా ఇది అగ్రభాగానే ఉంటుందని మాత్రం నేను చెప్పగలను. सेटविन इदारे को मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन क़याम तेलंगाना के बाद सेटविन को मज़ीद मुस्तहकम कर दिया गया है। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर बराए आबकारी व खेल डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने अपने दफ्तर वाक़े रविंद्र भारती में वज़ीर मौसूफ ने सेक्रेटरी उमूर और नौजवान हुकूमत तेलंगाना के हमरा सेटविन इदारे की जानिब से तरतीब दिए गए एक ऐप का इफ्तिताह अंजाम देते हुए कही है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए सेटविन इदारे के ज़रिए मुख्तलिफ तकनीकी कोर्सेस में तरबियत दी जाती है और अब इन खदमात को अज़ला तक तोसी दी जा रही है। वज़ीर मौसूफ ने नौजवानों से अपील की है कि वो सेटविन के खदमात से भरपूर इस्तेफ़ादा करें और इस ऐप में मौजूद जानकारी से भी वो इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस प्रोग्राम में मैनेजिंग डायरेक्टर सेटविन वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये ख़ास रिपोर्ट। जनरल इंटरमीडिएट फस्ट प्रेफरेंस इస్తాం సార్ మనం దాంట్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఎంపీసీ తర్వాత బైపీసీ ఉంటుంది తర్వాత హ్యుమానిటీస్ లో ఎంఈసీ ఉంది హెచ్ఈసీ ఉంది సిఈసీ ఉంది తర్వాత సివిక్ సైడ్ లోకి వెళ్ళిపోతారు సార్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడి నుంచి మొత్తం ఎలా అప్లై చేయాలి ఇంటర్నెట్ మొత్తం అక్కడి నుంచి వచ్చేది ఏ టైం ఉంది ఏంటి 10th ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అట్లాగే మంచి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాటికి సంబంధించి మన ఇది ఉంది కదా టాస్క్ తెలంగాణ అకాడమీ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ వీటికి సంబంధించి కూడా మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా దీంట్లో సపోజ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్కి వెళ్ళారంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏమేమి కోర్స్ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమేమి చేస్తున్నాము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమేమి చేస్తున్నాము వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఆ సైట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అట్లాగే జాబ్స్కి వచ్చేటప్పటికి ఓపెనింగ్స్ ఏమున్నాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మనకు టీఎస్పీఎస్సీ ఉంది లేకపోతే టీఎస్పీఎస్సీ క్లిక్ చేయగానే టీఎస్పీఎస్సీ వెబ్సైట్కి వెళ్తారు సార్. गरीब लोगों को और मिडिल क्लास पीपल्स को ट्रेनिंग देके जॉब मिलने के लिए कोशिश करते थे। ये हैदराबाद में 26 सेंटर्स में गवर्नमेंट अमन चला रहे और 46 तक प्राइवेट वाला फ्रांचाइज देके वो करा है। ये हमारा सेक्टर में 47 आइटम्स का ट्रेनिंग हम लोग दे रहे। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहा और बाहर में दुबई अरब कंट्रीज में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्टिफिकेट्स देके नौकरी अच्छा सैलरी से वो नौकरी देती। फिर ये कोरोना में बहुत स्टूडेंट्स घर में थे, हमारे एम्प्लॉयज़ अरे क्या करना बोल के सोच के आज एक वेबसाइट क्रिएट करे तो आगे दिन में क्या पढ़ना, एक आदमी 10th पास हो गए तो क्या पढ़ना, इंटरमीडिएट के बाद क्या करना और डिग्री के बाद क्या करना, नहीं 10th पढ़ के नौकरी करना बोलते तो क्या पढ़े तो नौकरी आता कैसा जीना, उससे इन लोगों का हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दिए से एम्प्लॉयमेंट दिए से लोग हैं। अब ये कोरोना समय घर में कैसे ऑफिस में कैसे काबिज बैठना कुछ क्रिएट करना बोल के आज एक वेबसाइट लॉन्च करें हम लोग, हम हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी गोस्ट सर वेणुगोपाल एमडी सर, और इससे बहुत गरीब लोगों को इस्तेमाल होता। गांव में भी अरे 10th के बाद क्या नौकरी मिलता बोल के उन्होंने रहता, नहीं इंटरमीडिएट 10th के बाद मैं क्या पढ़ना भाई पैसे नहीं है बोल के सोचते, मगर 100 साल पढ़े तो अच्छा नौकरी मिलता बोल के मालूम नहीं है उसको। वो मालूम रहना बोलते किसको पूछना, हम ये वेबसाइट में देखे तो पूरा वेबसाइट में आया था। अरे मिडिल क्लास पीपल्स को बहुत अच्छे इस्तेमाल होता है।
इसलिए हमारा लोग एक वेबसाइट क्रिएट करे, बहुत शुक्रिया। और आगे दिन में ये वेबसाइट को हमारे सेटविन को और अच्छा बढ़ा के हर एक बच्चे को, हर एक गरीब लोगों को भी ये मालूम करे, ऐसा एक करते। आज हैदराबाद के ओनली सिर्फ हैदराबाद को हैदराबाद में था, इससे पहले तेलंगाना के बाद और हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी करना, बल्कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी आज तक 5-6 डिस्ट्रिक्ट तक कंप्लीट हो गया है। आगे दिन में हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी ये सेटविन का ट्रेनिंग सेंटर लगा के, सेटविन ये ट्विन सिटीज में सेटविन बोलते और बाहर में स्टेप बोल के बोलते, वो एक्सटेंड करके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ट्रेनिंग देने के लिए और अच्छा करते। ये प्राइवेट में भी नौकर का किधर किधर है वो इन्फॉर्मेशन भी लगाने के लिए हम लोग यहाँ सोच रहे, वो भी आगे दिन में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में किधर अपॉर्चुनिटी है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें पूरा करते। रियासती वजीर बराए तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली जिले परिषद स्कूल का अचानक मुआयना किया है। इस मौके पर इन्होंने कोविड ज़वाबत पर अमलावरी के मुतालिक स्कूल हेडमास्टर और असातिज़ा से तमाम जानकारी हासिल की और तलबा से भी स्कूल की जानिब से किए जा रहे इक़दाम के मुतालिक दरियाफ्त किया है। उन्होंने स्कूल में 55% तलबा की हाज़िरी पर वज़ीर मौसूफ से कहा कि औलिया तलबा को अपने बच्चों को स्कूल रवाना करने के लिए तरग़ीब देने की असातिज़ा को हिदायत दी और कहा कि 10वीं जमात के तलबा को बेहतर तालीम देते हुए इन्हें इम्तहानात के लिए भरपूर तैयार करें। మీ టీచర్ అడగలేదా డౌట్స్ ఉంటే ఏం చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అడిగారు టీచర్ని అడగలేదు ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు అమ్మా సూపర్ చూసినావా అర్థమైనాయా డౌట్ ఉంటే టీచర్తో మాట్లాడినా అందరికి रियासती हुकूमत की जानिब से आज स्कूलों की कुशादगी के ऐलान के पेश नज़र रियासत भर में 9वीं जमात और 10वीं जमात के तलबा अपने अपने स्कूलों का रुख किया है। इस मौके पर स्कूल में भी असातिज़ा की जानिब से स्कूलों की सफाई और सैनिटाइजेशन करवाते हुए तलबा का इस्तकबाल किया गया है। इस खुसूस में तलबा को अपने वालिदीन के इकरारनामे के साथ आने और क्लासरूम में मास्क के इस्तेमाल के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की खुसूसी हिदायतें दी गई। ఫస్ట్ వచ్చిన పిల్లలకి అవి దూరం పెట్టి బ్యాగ్స్ పెట్టి
वजाहत, इंचार्ज हेडमास्टर हूँ मैं, और गवर्नमेंट हाई स्कूल शंकेश्वर बाज़ार में 9th क्लास और 10th क्लास स्टार्ट कर दिए। और मॉर्निंग में हम लोग पूरा सैनिटाइज़ कर दिए थे स्कूल को ऑलरेडी, और 2 दिन पहले से भी सैनिटाइज़ किया हुआ है स्कूल पूरा, और बच्चों को भी टेम्परेचर चेक किए, और उसके साथ साथ सैनिटाइज़ करें। स्टार्ट मास्क कंपलसरी है, और क्लासरूम में भी जो है डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सब। और आने से पहले बच्चों को पहले से इन्फॉर्म कर दिए थे, पूरे गाइडलाइंस उनको समझा दिए गए थे। और उसके बाद में अभी भी अब जब बच्चे क्लासरूम में हैं तो वो लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्लासेस चल रहे हैं यहाँ पर। आज 9th to 10th क्लास में हमारे पास 25 स्ट्रेंथ है आउट ऑफ 84, और 55 स्ट्रेंथ आई 10th क्लास में आउट ऑफ 87। ऑलमोस्ट 50% आए। अभी उनमें थोड़ा अवेयरनेस आने के बाद में पेरेंट्स भी आकर गए, पूछ कर गए, तो शायद कल परसों और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएंगी हमारे स्कूल को। मिड डे मील्स के लिए भी अभी इंडेंट दिए है, अभी वो लोग कल से शायद सर्व करेंगे मिड डे मील्स, मगर आज बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि अपना मील्स, अपना लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स लेकर आगे बच्चे, तो लंच आवर में वो लोग अपना डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लंच कर लेंगे। वो पूरे टीचर्स वगैरह सब उन पर सुपरविज़न रखे हुए, टीचर्स के सुपरविज़न में ही लंच करेंगे वो लोग। टाइमिंग्स 9 to 4 o'clock है। कोकटपल्ली में हैदराबाद सिटी बीजेपी की जानिब से मुनाकिदा ग्रेजुएट्स के इजलास में सदर कौमी बीजेपी DK अरुणा, फिल्म अदाकारा जीविता और दीगर कायदीन ने शिरकत की है, जबकि इस इजलास की सदारत रामचंद्र राव एडवोकेट साबिक MLC ने की। ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के पेश नज़र इस इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस मौके पर मज़कूरा कायदीन ने कहा कि मुजव्विज़ा ग्रेजुएट हल्का कानून साज असम्बली इंतखाबात में हल्का हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर से बीजेपी की कामयाबी यकीनी बनाने के लिए ग्रेजुएट से इन इंतखाबात में बीजेपी के हक़ में वोट इस्तेमाल करने की अपील की गई। నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో తెలంగాణ కూడా మేము బీజేపీ అధికారంలోకి రావాలని ప్రతి గ్రామంలో కూడా ప్రజలు, రైతులు, విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు అందరూ కూడా కోరుకున్నటువంటి నేపథ్యంలో మరి ఎన్నికల్లో రామచంద్రరావు గారిని శాసన మండలిలో వారు ప్రస్తావించినటువంటి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక అంశాలు, ప్రభుత్వం ఏదైతే ప్రజా వ్యతిరేకమైనటువంటి అంశాలు తీసుకున్న ప్రతి అంశమైన కూడా వారు సభలో చర్చించినటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. విద్యార్థుల విషయమే కావచ్చు, నిరుద్యోగుల విషయమే కావచ్చు, ఉద్యోగుల విషయమే కావచ్చు, అదేవిధంగా మహిళల విషయమే కావచ్చు, రైతుల విషయమే కావచ్చు, ఎక్కడ ఏ అంశం వచ్చినా, ఏ సమస్య పైన మరి ఈరోజు శాసన మండలిలో చర్చించి మరి అందరికంటే కూడా ఎక్కువ సమయాన్ని శాసన మండలిలో చర్చ జరిపిన వాళ్ళలో మొదటి వ్యక్తిగా ఇచ్చినటువంటి విషయాన్ని మరోసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు నిరుద్యోగులను మోసం చేసినటువంటి केसीआर। वरंगल में बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी और हनमकुंडा MLA के राम मंदिर के मुतालिक रिमार्क्स के खिलाफ और वरंगल में बीजेपी दफ्तर पर किए गए हमले के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले गोशामहल MLA राजा सिंह को पुलिस ने घटकेसर के मकाम पर रोक कर गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह सीनियर बीजेपी कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट AP जितेंद्र रेड्डी, जो कि वरंगल बल्दी कॉरपोरेशन इंतखाबात के भी इंचार्ज है, इन्हें भी पुलिस ने वरंगल के सफर पर जाने के दौरान आलेर के पास रोककर गिरफ्तार कर लिया। ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే అక్కడ కార్యకర్తల పైన దాడి జరిగింది. ఎంతోమంది కార్యకర్తలు అరెస్ట్ కూడా చేస్తారు. ఏదైనా గడపడ కానీ ఏదైనా నోటీస్ చేయాలి అటువంటి ఏం లేదు. పోవాలి, కలవాలి, రావాలి, అదే మా ఉద్దేశం.
జై శ్రీరామ్ నీకే భయపడతాయిందా ऊपरपल्ली सेंट जोसेफ कॉलेज में आज यौम ग्रेजुएट मनाया गया है। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी सर्कल इंस्पेक्टर राजेंद्र नगर कनकैया ने शिरकत की। इस मौके पर 200 तलबा व तालिबात में स्नादात और मेडल्स की तकसीम अमल में लाई गई। इंस्पेक्टर कनकैया ने इस मौके पर तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर मुंतज़िरीन और तलबा ने मीडिया नुमाइंदों से बात की। एक स्टूडेंट प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल एजुकेशन, इंटरमीडिएट और डिग्री होते तो ख़त्म है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहता। इस स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल में 200 डिग्री कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स पढ़ के ग्रेजुएशन ख़त्म हो गए। इससे से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा मौके से और पीजी वगैरह करके पूरा कुछ भी और गवर्नमेंट और प्राइवेट का जॉब मिलने का और पेरेंट्स को अच्छा नाम लाने का और देश के लिए अच्छा नाम लेने का पूरे लोगों को कोशिश करता बोल के अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, इंटर प्लस डिग्री यहीं से कंप्लीट हुआ। मैं पहले अल्लाह सुब्हानो तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरी डिग्री पूरी मुकम्मल हुई। दोस्तों मैं साथी में मेरे वालदा मेरे माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज साथी में मेरे उस्ताद जो कि मेरे लिए मेहनत कोशिशें करें, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही में मेरे भैया भी मेरे कुछ हेल्प करें, एग्जाम के टाइम हेल्प करें, पढ़े और वो पैसों मैं भी मेहनत करा। अल्लाह ताला आज इस ग्रेजुएशन डे देखने की हुआ। जुबली हिल्स के शेखपेट हुदूद में वाक़ कोहिसार कॉलोनी में बंजारा हिल्स पुलिस और हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से एक कहबागिरी के अड्डे को बेनकाब किया गया है, जहां पर कहबागिरी में मुलविस ख़वातीन, कारोबार में मुलविस दरमियानी अशख़ास और गाहकों को गिरफ्तार किया गया। मकामी आवाम के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से किसी अफ्रीकी मुल्क की लड़कियाँ इस इलाके के एक मकान में किराए पर लेकर गैर अखलाक़ी कारोबार कर रही थी। हैदराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के नुमाइंदे सूफिया सिद्दीकी के इत्तला पर पुलिस बंजारा हिल्स ने यह कार्रवाई अंजाम दी है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। जिले संगारेड्डी के मंडल कोहिर मुस्तखर पर वाक़ दरगाह हज़रत मौलाना मोइज़ुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह का 762वां उर्स शरीफ की तकारीब 3 दिन जोश व खरोश के साथ मनाई गई है। इस मौके पर उर्स कमेटी के सदर मोहम्मद शौकत अली के ज़ेर निगरानी रस्म संदल अंजाम दी गई। दूसरे दिन जश्न चिरागा मुनक़िद किया गया। इसके अलावा मकामी कुरैश बरादरी की जानिब से भी खानगी संदल और कोहिर के नौजवानों की जानिब से भी ज़बरदस्त अंदाज में संदल चढ़ाया गया है। इस उर्स शरीफ में हस्ब रिवायत शक्तियों के मुकाबले का भी इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें न सिर्फ तेलंगाना के मशहूर व मारूफ पहलवान बल्कि पड़ोसी रियासतों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड व आंध्र प्रदेश के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद फ़हीम हैदराबादी और नायब सदर मंडल परिषद कोहिर मोहम्मद शाकिर, दीगर TRS कायदीन के अलावा कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अहमद ने दरगाह शरीफ पहुंचकर हाज़िरी दी और खिलाफ़े चादर गुलपोशी पेश की। इस मौके पर आवाम का हुजूम कसीर तादाद में देखने में आया है। इस मौके पर पुलिस का भी माहौल बंदोबस्त किया गया।
एमएलए रघुवंदन गौड़ एडवोकेट ने बीजेपी कारकुनों से अपील की है कि करीमनगर और वरंगल में बरसर इख्तिदार जमात के एमएलएज की जानिब से रामचंद्र जी के मुतालिक अहानत अमेज रिमार्क के खिलाफ हर मंडल हेडक्वार्टर पर काली झंडियां लगाकर अपना पुरअमन एहतजाज दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर एक ट्रस्ट कायम करते हुए ट्रस्ट की जानिब से वसूल किए जा रहे चंदे के मुतालिक टीआरएस अरकान असेंबली की लबकुशाई काबिल मज़म्मत है। ये तेलंगाना स्टेट में कल 2 दिन से वरंगल में या करीमनगर ज़िला में 1-2 एमएलए जो राम भगवान के खिलाफ में जो बातचीत कर रहा, उसके लिए रामदंडू ने ये डिमांड कर रहा उन लोगों को, उन लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, नहीं तो टुमारो वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन द नेम ऑफ रामदंडू दैट द पीपल इन ऑल मंडल हेडक्वार्टर्स शुड हैव द प्रोटेस्ट विथ ब्लैक कर्चीफ्स ऑन देयर माउथ्स एंड द Lord Rama's what I can say idols, or if idols are not available, the photographs in their hands, and it should be a peaceful protest against the people, those who are badly speaking and insulting the Lord Ramachandra. And we are demanding what is the role of Telangana Chief Minister's office, whether you are in favor of the Supreme Court judgment or not. The central government has formulated a trust on the directions given by the Supreme Court. If you respect the judgment of the Supreme Court, obey the trust, and if you have any doubts, we are ready to debate on behalf of Rama Mandira Nirmana Trust, or Vidyasagar ji is ready to debate. If you are ready, you please come to Bhadrachalam Rama Mandira Temple on any day which is convenient. कायदे मुकर्ररा कांग्रेस कमेटी भट्टी विक्रमा ने कहा आज अहता असेंबली में सीएलपी दफ्तर में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट एक मुखालिफ गरीब और मुखालिफ किसान बजट है। उन्होंने कहा मरकजी वजीर खजाना की जानिब से सरकारी बैंकों और इंश्योरेंस कंपनियों को कांगियानी की तजावीज़ को उन्होंने नाकाबिल कबूल करार दिया। इन्होंने मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए किसी भी तरह के तयक़ुनात ना होने पर भी एतराज़ का इजहार किया है। It is totally disappointed बजट। ये पूरा बजट में आम लोगों के लिए और मिडिल क्लास पीपल के लिए और गरीब लोगों के लिए कुछ सोच भी कहीं भी दिख रहा नहीं। ये पूरा बजट सुनने के बाद हमको ये मालूम पड़ रहा ये भारतीय जनता पार्टी पूरा क्रोनी कैपिटलिस्ट के लिए काम कर रहा जैसा है। ये देश में जब बैंक्स को नेशनलाइज करके हर गरीब लोग भी बैंक के पास जा सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं बोल के नेशनलाइज करे सो हिस्ट्री है हमको। वैसा नेशनलाइज करे सो बैंकों को आज प्राइवेटाइज करेंगे बोल के 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे बोल के वो बोल रहा है, ये बहुत गलत है। वैसी इंश्योरेंस कंपनीज को भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 74% येलो करेंगे बोल के इस बजट में बता रहा, ये और बुरा है, बहुत ही बुरा खतरा भी है देश के लिए। वैसे जब स्टेट बाइफर्केशन होने के टाइम पे तेलंगाना को बहुत देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बताया था, रेलवे कोच फैक्ट्री हाजीपेट, बयारम स्टील प्लांट, गिरिजन यूनिवर्सिटी, टीआरएस एमपीज और बीजेपी एमपीज दोनों मिला हुआ है, दोनों। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। बेरोजगार नौजवान इदारे सेटविन की खिदमात से इस्तेफादा हासिल करें, रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का बयान। और वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा असातिज़ा तलबा को मयारी तालीम फराहम करते हुए इम्तिहानात के लिए करे तैयार। नाज़रीन, आने दक्कन की खबरों का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। देनौशीन को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।